Of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section. In economics, today we going to start new chapter, chapter 3, determination of income and employment. After the completion of money and banking, second chapter, I hope that you all make your own notes in your homework copy and also going to remember that notes. In chapter 3, determination of income and employment in an economy, it is very important chapter from the point of view of board examination because several questions were asked from this chapter, short type as well as long type and objective also. So in this chapter, the need is to first of all clear the concept regarding aggregate demand, aggregate supply and its various other related elements. Students, as we know that the price of a particular item will get decided, equilibrium price and equilibrium quantity in market on the basis of their demand and supply. At the point where demand and supply intersect each other, at that equilibrium point, the equilibrium price and equilibrium quantity were decided. Same as in an economy, the employment and income level were decided at that place where the aggregate demand and aggregate supply became equal to each other. Thus, we have to be clear the very first concept and components of aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand. Aggregate demand refers the value of total expenditure on all goods and services in an economy during a financial year. अर्थात समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जो एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था के द्वारा उसके विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया जाता है. इट्स डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी. और ये खर्च कितना किया जाएगा, ये क्योंकि एग्रीगेट डिमांड वर अराइज फ्रॉम इनकम, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ये डिमांड डिपेंड करता है. एग्रीगेट डिमांड एडी बराबर होता है सी प्लस आई, यानी कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड. अब ऐसा क्यों है, तो हम बताते हैं कि ऐसे तो एडी बराबर हो सकता है एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वेयर सी refers the consumption demand which is made by household, I refers investment demand which is made by production sector, G refers for government demand which is made by government sector, and plus X minus M yani export minus M which is known as external sector demand. But for the from the point of view of calculation, we just we assume that in an economy there are only two sectors, consumption household sector and production sector, and thus there is only two types of demand, C plus I, consumption demand which is made by household sector and investment demand which is made by industrial sector or production sector. AD equal to C plus I. यानी अब अगर हम एडी को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स दैट टोटल एक्सपेंडिचर, द अमाउंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विच इज मेड ओवर कंजम्पशन गुड्स बाय हाउसहोल्ड सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स बाय प्रोडक्शन सेक्टर, वेयर सी इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. नाउ वी हैव टू बी ऑल्सो क्लियर द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है ये, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एडीएस. एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इज ए टेबुलर प्रेजेंटेशन. ये एक टेबल है, टेबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट इनकम लेवल्स. यानी एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल समग्र मांग अनुसूची और कुछ नहीं बल्कि एक सारणीय प्रदर्शन है जो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग एवं निवेश पर किए जाने वाले विभिन्न व्ययों को बताता है. तो इनकम देखिए, यहाँ पे इनकम है 0, 200, 400, 600, 800 और 1000. यहाँ कंजम्पशन है 100, 200, 300, 400, 500, 600. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 100, 100, 100.
एग्रीगेट डिमांड हो गया C प्लस आई, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 100 400, 400 प्लस 100 500, 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 100 700। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि जब Y 0 है, I 0 है, तो कंजम्पशन 100 कहां से है? देखिए ये वही कंजम्पशन 100 यहां पर है जो हम यहां पर अगर सेविंग का लाइन हम खींचे, क्योंकि Y बराबर क्या होता है पता है, Y बराबर होता है C प्लस S। या तो इनकम का दो पार्ट होता है, खाएगा या बचाएगा, कंजम्पशन करेगा या सेविंग करेगा। तो अगर हम यहाँ पर सेविंग भी ड्रॉ करें तो हमको यहाँ पे चूंकि I 0 है और कंजम्पशन 100 है, तो सेविंग यहाँ पे हमको आ जाएगा -100। यानी कि जब इनकम और इस सेविंग इस कंजम्पशन को, जो जीरो लेवल इनकम पर जो कंजम्पशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग क्या है? तो ऑटोनोमस कंजम्पशन रेफर्स दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन और दैट अमाउंट ऑफ कंजम्पशन विच मे बी अवेलेबल इवन जीरो लेवल इनकम। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन रेफर्स दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज नीडेड टू सर्वाइव। जीने के लिए जो कंजम्पशन आवश्यक है, उस कंजम्पशन को ये ऑटोनोमस कंजम्पशन दिखाता है। और ये तब भी जारी रहेगा यदि I 0 हो। और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहां से होता है? तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है डिसहोल्डिंग से और बचत से। यानी अगर किसी की I 0 है तो वो अपने पुराने बचत से, ये माना जाता है कि वो अपने पुराने बचत से और घर के अन्य चीजों को बेचकर भी वो खाएगा, लेकिन खाएगा, अगर जिंदा रहना है तो वो खाएगा। इसीलिए इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, विच इज हैपन इवन इनकम लेवल इज 0। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जितना होगा जीरो लेवल इनकम पर, उतना ही नेगेटिव सेविंग हो जाएगा। धीरे धीरे देखते हैं कि जब आय बढ़ता है, ये 200 हो गया तो कंजम्पशन 200, यानी इनकम में 200 की वृद्धि होने पे कंजम्पशन 200 है। यहाँ पर हम कहते हैं कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट है यानी कि कंजम्पशन जस्ट इक्वल टू इनकम एंड देयरफॉर सेविंग क्या हो जाएगा? यहाँ सेविंग हो जाएगा 0। इसके बाद जब 400 इनकम है तो खपत उपभोग 300 है, तो अब हो जाएगा सेविंग 100 0 के बाद। उसके बाद 600 इनकम में 400 खपत है, तो ये हो जाएगा 200। उसके बाद 800 में 500 खा रहा है, यानी 300, सेविंग अब बढ़ता जाएगा। और 1000 में 600 खा रहा है, यानी 400 बचत। तो ये सेविंग लाइन भी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो -100 ये डिसहोल्डिंग है, और 0 जहां पे होता है सेविंग 0 और इनकम के बराबर उपभोग है, ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। और ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स दैट पॉइंट वेयर कंजम्पशन बिकेम जस्ट इक्वल टू इनकम एंड एट दैट पॉइंट सेविंग इक्वल टू 0। ये एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इज ए टेबुलर प्रेजेंटेशन विच shows the different level of consumption and investment at different level of income। और इन दोनों कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ देते हैं हमको, तो एडी मिल जाता है। हम सेविंग लाइन भी इसमें से निकाल सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स।